Hello everyone, welcome to my YouTube channel NM Stories and Education. This is Niranjan Mishra. ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବହିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପରିବହନ ଓ ସଞ୍ଚାଳନ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନର ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଦିଅ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନର ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ଏଠାରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନର ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 8, ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। କ, ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ। ମଣିଷ ତଥା ଅନ୍ୟ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଚାରି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଅମ୍ଳଜାନଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତର ମିଶ୍ରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାମପଟର ଅଳିନ୍ଦ ଓ ନୀଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅମ୍ଳଜାନଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ନୀଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାହା ଦୁଇଥର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏ ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ ଡବଲ ସାର୍କୁଲେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଖ, ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ଜଳର ଶୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ସେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେତୁ ପତ୍ରର ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜଳକ୍ଷୟ ହୁଏ। ଜଳକ୍ଷୟ ହେତୁ ପତ୍ର ଫଳକରେ ଜଳର ବିସରଣ ଚାପ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରେସର କମିଯାଏ। ତେଣୁ ପତ୍ରର ଶିରାପ୍ରଶିରାରୁ ଜଳ ପତ୍ରଫଳକ ମଧ୍ୟ ଗତି କରେ। ଫଳରେ ଶିରାପ୍ରଶିରାରୁ ଜଳର ବିସରଣ ଚାପ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ପତ୍ରଫଳକ ଓ ଶିରାପ୍ରଶିରାରେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଳ କାଣ୍ଡର ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁରୁ ପତ୍ର ଶିରାପ୍ରଶିରାକୁ ଗତି କରେ। କାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜାଇଲେମ୍ରେ ଜଳର ଧାରା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଳ ମୂଳରୁ ଶୋଷିତ ହୋଇ କାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଉତ୍ସେଚନ ଜନିତ ଆକର୍ଷଣ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ପୁଲ୍ ଯୋଗୁଁ ମୂଳରୁ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳର ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଜଳର ଏହି ଧାରାକୁ ଉତ୍ସେଚନ ସ୍ରୋତ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜଳଧାରା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦୁଇଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସହଜରେ ଛିନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଏ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମନଳୀ ଭିତରେ ଜଳ ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଶକ୍ତି ବଳ କୋହେସିଭ୍ ଫୋର୍ସ ଅର୍ କୋହେଜନ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥାଏ। ଜଳ ଓ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଆଧେସିଭ୍ ଫୋର୍ସ ଅର୍ ଆଧେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ସର୍ବଦା ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ସହ ଲାଗି ରହେ ଏବଂ ଥରେ ଲାଗି ରହିଲେ ତାହା ସହଜରେ ସେଥିରୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ। ଗ, ଶିରା ଓ ଧମନୀ। ଶିରା। 1. ଶିରାରେ ରକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କୋଷରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଆସେ। 2. ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବିହୀନ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। 3. ଶିରା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କପାଟିକା ବା ଭାଲ୍ଭ ଥାଏ। ଏହି କପାଟିକା ରକ୍ତକୁ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। 4. ଶିରାରେ ରକ୍ତଚାପ କମ୍ ଥାଏ। 5. ଶିରାର ଭିତର ଏକଦମ ପତଳା ହୋଇଥାଏ। 6. ବ୍ୟତିକ୍ରମ। କେବଳ ପଲ୍ମୋନାରୀ ଭେନ୍ ବା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଧରିଥିବା ରକ୍ତ ହୃଦୟକୁ ଆଣେ। ଧମନୀ। 1. ଧମନୀରେ ରକ୍ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଏ। 2. ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। 3. ଧମନୀ ଭିତରେ କପାଟିକା ବା ଭାଲ୍ଭ ନଥାଏ। 4. ଧମନୀରେ ରକ୍ତଚାପ ଅଧିକ ଥାଏ। 5. ଧମନୀର ଭିତର ମୋଟା ହୋଇଥାଏ। ଘ, ରକ୍ତବର୍ଗ। 1. ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ତରେ ଥିବା ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାର ଆବରଣରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ଏଣ୍ଟିଜେନ୍ କୁହାଯାଏ। 2. ପ୍ଲାଜମାରେ ସେହିପରି ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆଣ୍ଟିବଡି କୁହାଯାଏ। 3. ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଓ ଆଣ୍ଟିବଡିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିବଡି କେବଳ ତାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରେ। 4. ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା ଆବରଣରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଓ ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିବଡିର ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମଣିଷରେ 4ଟି ରକ୍ତବର୍ଗ ନିରୂପିତ ହୋଇଛି। 5. ଏହି ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି A, B, AB,
ଓ ଆଇ ଏ ରକ୍ତଗୁଣ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଏ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଥାଏ। ପ୍ଲାଜମାରେ ଆଣ୍ଟି ବି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଥାଏ। ଡବଲ ଆଇ ବି ରକ୍ତଗୁଣ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ବି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଥାଏ। ପ୍ଲାଜମାରେ ଆଣ୍ଟି ଏ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଥାଏ। ट्रिपल आई ए बी रक्तगुण लोहित रक्त कणिकार ए ओ बी आंटीजेन थाए। प्लाज्मा रे कौनसी आंटीबॉडी न थाए। या यूनिवर्सल रिसिपिएंट सर्वजन ग्रहिता रक्त कह जाए। आई बी ओ रक्तगुण लोहित रक्त कणिकार कौनसी आंटीजेन न थाए। प्लाज्मा रे आंटी ए और आंटी बी आंटीबॉडी दुईटी थाए। या यूनिवर्सल डोनर सर्वजन दाता रक्त कह जाए। आरएच आंटीजेन था मनीष को आरएच पॉजिटिव, आरएच आंटीजेन नथिबा मनीष को आरएच नेगेटिव कह जाए। कैसिक आकर्षण कैपिलरी अट्राक्शन 1 गोटे कैसिक नली कैपिलरी ट्यूब को जल में बुड़ाइले कैसिक आकर्षण जनित चाप एवं जलर उच्च पृष्ठदान सरफेस टेंशन फल जल कैसिक नली मध्य देई किसी ऊपर को उठी जाए। नली मध्य जलर उच्चता वृद्धि निर्भर करे नलीर व्यास उपरे। 2 नलीर व्यास जिते छोट हुए जलर उच्चता सेतिक अधिक हुए। 3 जाइलेम कैसिक नली सदृश एवं ताहा मध्य देई जल कैसिक आकर्षण जो ऊपर को उठे। 4 1 मिलीमीटर 100 भागरू 1 भाग विशिष्ट जाइलेम नली रे कैसिक आकर्षण जो जल 3 मीटर पर्यंत उठी पारे। 5 प्रत्येक जाइलेम टिश्यूर व्यास 0.001 मिलीमीटर रु कम तेणु उक्त नली रे जल 10 मीटर पर्यंत उच्च को उठी पारे ताठारु अधिक नुहे। 6 छोट छोट कम उच्च गछपाई कैसिक आकर्षण जनित जलर परिवहन संभवपर मात्र अति उच्च वृक्ष यह पर्याप्त नुहे। मूलज चाप रूट प्रेशर 1 कौन एक उद्भिदर कांड को अधारू काटिदेले क्षतस्थल जलीय पदार्थ बाहर लक्ष्य करा जाए। मूलज चाप जो यह होता है बोली विश्वास करा जाए। 2 गछर कटा अंशर जदि गोटे मैनोमीटर खंजी दि जाए तेरे मूलरू जो चाप सृष्टि हुए मूलज चाप ताकू मपा जाई पारे। 3 जदि जलर ऊर्ध्व परिवहन पाई मूलज चाप आवश्यक तेरे उच्च गछगुड़िक यही चापर परिमाण अधिक हेबा कथा मात्र ताहा हुए नहीं। 4 तेणु यही सब कारण जल परिवहन रे मूलज चापर विशेष भूमिका नहीं कहले चले। नंबर 9 संक्षेप उत्तर दियो। क कैसिक आकर्षण जो जलर परिवहन किपरि होता है। उत्तर 1 गोटे कैसिक नली को जल में बुड़ाइले कैसिक आकर्षण जनित चाप एवं जलर उच्च पृष्ठतान फल जल कैसिक नली दे किसी ऊपर को उठी थाए। 2 नली मध्य जलर उच्चता निर्भर करे नलीर व्यास उपरे। नलीर व्यास जिते छोट हुए जलर उच्चता सेतिक अधिक हुए। 3 जाइलेम कैसिक नली सदृश एवं यह मध्य जल कैसिक आकर्षण जो ऊपर को उठे। ख मनीषर रक्तवर्ग किपर निर्णय करा जायछि। उत्तर 1 मनीषर रक्त रे लोहित रक्त कणिका आवरण रे थिबा प्रोटीन को एंटीजेन और प्लाज्मा रे थिबा दुईटी प्रोटीन को आंटीबॉडी कहा जाए। आंटीजेन और आंटीबॉडीर विशेषत्व हेउछि एक निर्दिष्ट आंटीबॉडी केवल तापाई उद्दिष्ट आंटीजेन को चिन्हि पारे। 3 लोहित रक्त कणिकार आवरण रे थिबा आंटीजेन और प्लाज्मा रे थिबा आंटीबॉडीर उपस्थिति उपरे निर्भर करी मनीषर 4टी मुख्य रक्तवर्ग निरूपित होइछि। ग मनीष हृत्पिंडर प्रकोष्ठ और कपाटिकार अवस्थिति लेख। उत्तर प्रकोष्ठर अवस्थिति 1 मनीषर बक्षगह्वर मध्यस्थल 2 फुसफुस मझिरे और मध्यस्थतार उपरे सामान्य बामक हृत्पिंड अवस्थित। हृत्पिंडर 4टी प्रकोष्ठ रही। 3 ऊपर 2 प्रकोष्ठ को एट्रियम बा अलिंद दक्षिण और बाम अलिंद और तल 2 प्रकोष्ठ को वेंट्रिकल बा नीलय दक्षिण और बाम नीलय कह जाए।
कपाटिकार अवस्थिति 1 दक्षिण अलिंद और दक्षिण नील द्वार 3 पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका एवं बाम अलिंद और बाम नील भितर 2 पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका थाए। 2 नीलय और रक्तवाहिनी मध्यस्थ कपाटिका को अर्धचंद्राकृति कपाटिका कहुए। 3 अलिंद और नीलय मध्यस्थित कपाटिका नीलय आड़ को एवं नीलय और रक्तवाहिनी मध्यस्थ कपाटिका रक्तवाहिनी आड़ को खोली पारे। 4 कपाटिका बंद हो गले रक्त से बाटे पछकू फेरी पारे ना। क्यों कारक मानक जो जल मूलरू गछर अग्रभाग पर्यंत जाए। उत्तर कैशिक आकर्षण, मूलज चाप, संशक्ति बल और संलग्न बलर मिलित प्रभाव में जल मूलरू गछर अग्रभाग पर्यंत जाए। उद्भिद जलर परिवहन में मूलज चापर भूमिका कौन। उत्तर 1 जदि जलर ऊर्ध्व परिवहन मूलज चाप आवश्यक तेबे उच्च गछगुड़िक यही चापर परिमाण जेते अधिक हवा कथा ता हुए ना। 2 जेतेबेले उत्सेदनर बेग सर्वाधिक से समय सर्वाधिक जल ऊपर उठी थाए ठीक सेति बेले मूलज चाप सर्वनिम्न थिबा देखा जाए। यही सब कारण जल परिवहन में मूलज चापर विशेष भूमिका नहीं कहले चले। नंबर 3 गोटे वाक्य उत्तर दियो। क मनीष रक्तर केउठारे एंटीजेन और एंटीबॉडी रही था। उत्तर मनीष रक्तर लोहित रक्त कणिकार आवरण में थिबा प्रोटीन को एंटीजेन और प्लाज्मा रे थिबा 2टी प्रोटीन को एंटीबॉडी कहुए। ख लैंडस्टेइनर क्यों जातिर मांकड़ लोहित रक्त कणिकार बाह्य आवरण में आरएस एंटीजेन थिबार देखिले। उत्तर लैंडस्टेइनर पाती मांकड़ लोहित रक्त कणिकार बाह्य आवरण में आरएस एंटीजेन थिबार देखिले। ग मनीष हृत्पिंड केते प्रकोष्ठ विशिष्ट। उत्तर मनीषर हृत्पिंड 4 प्रकोष्ठ विशिष्ट। घ पत्र में प्रस्तुत श्वेतसार किपरि भाव में गछर विभिन्न अंश को स्थानांतरित होता है। उत्तर पत्र में प्रस्तुत श्वेतसार जल में द्रवीभूत हो फ्लोएम टिश्यू द्वारा गछर विभिन्न अंश को स्थानांतरित होता है। गछर मूल चाप केउ जंत्र साहाय्य मपा जापे। गछर मूल चाप मैनोमीटर जंत्र साहाय्य मपा जापे। नंबर 11 गोटे शब्द उत्तर दियो। क क्यों रक्तवाहिनी द्वारा रक्त मनीष हृत्पिंडरू शरीर विभिन्न अंश को प्रभावित होता है। उत्तर धमनी। ख शिरारे कहार अवस्थिति जोगु रक्त पछकू फेरी पारे नहीं। उत्तर कपाटिका। ग मनीष हृत्पिंडर दक्षिण अलिंद और दक्षिण नील द्वार केतोटी पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका रही। उत्तर 3 पाखुड़ा। क नीलय और रक्तवाहिनी मध्य क्यों प्रकार कपाटिका रही। उत्तर अर्धचंद्राकृति। उद्भिदर वायव्य अंशरू जल बाष्प आकार जलर निर्गमन प्रक्रिया को कौन कहुए। उत्तर उत्सेदन। नंबर 12 शून्यतान पूर्ण कर। क पत्र में प्रस्तुत श्वेतसार डैश टिश्यू द्वारा स्थानांतरित होता है। उत्तर पत्र में प्रस्तुत श्वेतसार फ्लोएम टिश्यू द्वारा स्थानांतरित होता है। ख समस्त रक्त दे पारुवा व्यक्ति को डैश कहुए। ख समस्त को रक्त दे पारुवा व्यक्ति को सर्वजनदाता कहुए। ग बाम अलिंद और बाम नीलय मध्य थिबा कपाटिका डैश पाखुड़ा विशिष्ट। बाम अलिंद और बाम नीलय मध्य थिबा कपाटिका 2 पाखुड़ा विशिष्ट। घ उद्भिदरे जल डैश टिश्यू माध्यम विभिन्न अंश को परिवाहित होता है। घ उद्भिदरे जल जाइलेम टिश्यू माध्यम विभिन्न अंश को परिवाहित होता है। उत्सेदन द्वारा उद्भिदर डैश नियंत्रित होता है। उत्सेदन द्वारा उद्भिदर तापमात्रा नियंत्रित होता है। नंबर 13 वाक्य चिन्हित रेखांकित शब्द ऑब्लिक शब्दपुंज को बदलाई ठीक वाक्य लेख। क धमनी बाट दे मनुष्य शरीर विभिन्न अंशर रक्त संगृहीत हो हृत्पिंड ठारे पहुँचे। उत्तर शिरा बाट दे मनुष्य शरीर विभिन्न अंशर रक्त संगृहीत हो हृत्पिंड ठारे पहुँचे। ख मनुष्य हृत्पिंडर बाम अलिंद और बाम नील द्वार 4 पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका रही। ख मनुष्य हृत्पिंडर बाम अलिंद बाम नील द्वार 2 पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका रही। ग मनुष्य शरीर में एकक संचालन प्रकार रक्त संचालन देखा जाए। ग मनुष्य शरीर में द्वैत संचालन प्रकार रक्त संचालन देखा जाए। घ
କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଜଳର ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଦରକାର। ଘ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଜଳର ପୃଷ୍ଠତାନ ବଳ ଦରକାର। ନମ୍ବର 14 ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ଉତ୍ତର କ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ ବାମ ନିଳୟ ଡ୍ୟାସ୍। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ ବାମ ନିଳୟ ମହାଧମନୀ। ଖ ଜୋକଲାଳ ହିରୁଡ଼ିନ୍ ମଣିଷ ରକ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍। ଉତ୍ତର ଖ ଜୋକଲାଳ ହିରୁଡ଼ିନ୍ ମଣିଷ ରକ୍ତ ହିପାରିନ୍। ଗ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଆବରଣ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ପ୍ଲାଜମା ଡ୍ୟାସ୍। ଗ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଆବରଣ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ପ୍ଲାଜମା ଆଣ୍ଟିବଡି। ଘ ମୂଳଚାପ ଚେର କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଡ୍ୟାସ୍। ଘ ମୂଳଚାପ ଚେର କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଜାଇଲେମ୍ ନାଳୀ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।